So, hello friends, welcome to GS Guidance Forum. So, in this class, we will start regarding the history. So, for your classification, let us understand what is history. Okay? What is history? What is history? Okay? What is history? So, history is something which happens in the past, or in other words, we can say any important events that happens in the past can be history. ठीक है? Yeah, any important significant event that occurs in the past in a history. So, from competitive point of view, we have classified history. Yeah, as per the historians, we have classified history into three broader category. One is the ancient Indian history, ancient, second one is medieval, and last is modern, and after modern there is a post-modern. So, in this series we will start from the ancient Indian history. So, first thing we will discuss the sources of the ancient Indian history, because since way back it is 5 lakh years ago, yeah, 10,000 or 20,000 years ago, we don't have any written sources, yeah, any literary sources from which we can get the idea about the history. So, entire, yeah, maximum ancient Indian history based on the archaeological findings. Okay? We will discuss what is archaeological findings. So, let's come. So, in this topic we are going to start with the sources of the ancient Indian history. So, आपने सुना होगा कि बोलते हैं आज से बहुत साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, या 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, या जब भी ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ. So from the beginning we have started ancient Indian history from Stone Age. ठीक है? From Stone Age. See, from Stone Age. ठीक है? From Stone Age. So Stone Age में we have classified Paleolithic, that Mesolithic and Neolithic. उसमें भी और अलग क्लासिफिकेशन है, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल या लोअर पैलियोलिथिक, बट फॉर जनरल क्लासिफिकेशन वी हैव क्लासिफाइड पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. सो व्हाट इज द टर्म लिथिक? लिथिक सिग्निफाइज स्टोन. ठीक, बिकॉज आज से 5 लाख साल पहले आपके पास कोई औजार नहीं होते थे. जनरली जो भी औजार का यूज करते थे या जो भी, तो दैट इज मेड अप ऑफ स्टोन्स, इसीलिए हमने इस एज को बोल दिया स्टोन एज. चलिए, सो फॉर आवर क्लासिफिकेशन हिस्टोरियंस हैज डिवाइडेड द एज इनटू द डिफरेंट टाइम फ्रेम. ठीक है, सो लेट्स कम टू द पॉइंट. सो पैलियोलिथिक एज इज द अर्लीस्ट एज that as per the historian it is classified from 5 lakh BC to 10,000 BC. ठीक है, देन उसमें भी क्लासिफिकेशन है अर्ली, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक एज. so let us here first understand the concept of the AD and BC. ठीक है, let's suppose this is a reference point 0. ठीक है, we have assumed a reference point 0. So this time period is known as birth of Jesus. ठीक, birth of Jesus. So after 0 you will move towards 1, 2, 3, 4, 5 until this is
2023. In the same way 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 लाख BC, ठीक है, जो हमने स्टोन एज में देखा था. इसके बाद so any events happened before the birth of the Jesus comes under, ठीक है, comes under BC, and any events in the history that happens after the birth of the Jesus comes under AD, ठीक है, Anno Domini या before Christ. चलिए आगे आइए. So for our classification of the ancient history, we have divided history into the Paleolithic age, Mesolithic age, Neolithic age, and Chalcolithic age. So the time period of the Paleolithic age is around 5 lakh BC to 10,000 BC, and as of Mesolithic age is 9,000 BC to 4,000 BC, and Neolithic age is around 5,000 BC to 1800 BC, and Chalcolithic age is 1800 BC to 1000 BC. This age is also referred as a copper age. ठीक है, copper age. ठीक है, तो सबसे पहले अगर ह्यूमंस ने यूज करना मेटल्स को शुरू किया था, सो दैट इज अ कॉपर. ठीक है, अब पैलियोलिथिक एज को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है फॉर आवर क्लासिफिकेशन. अर्ली, मिडिल एंड लेटर या अपर पैलियोलिथिक एज. इसका दिस इज द टाइम पीरियड. दिस इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट. फिर सेम वे वी हैव डिस्कस व्हाट इज हिस्ट्री. व्हाट इज हिस्ट्री? बेस्ड ऑन द सोर्सेज वी कैन फाइंड द एग्जैक्ट टाइम. ठीक है, based on the sources we can find the exact time या any past significant event is termed as history. ठीक है, वही चीज बताया. this is the age of Christ. इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया हमने. इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया कितना? 0. इस रेफरेंस पॉइंट को हमने कितना मान लिया? 0 मान लिया. and any event happened the birth of Christ comes under BC, and any event happens after the birth of the Christ that comes under AD या Common Era. So means कि let's suppose अभी next topic में हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, फिर बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, बुद्धिज्म, जैनिज्म. सो ये सब BCs में आगे के चल के देखते हैं. आगे देखिए. So the first thing is the sources of the ancient Indian history. देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री के बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस भी थे. मीन्स कि उस टाइम तक हम लिखना पढ़ना जान गए थे, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे दैट इज इन रिटन फॉर्म. अगर बेसिकली अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अभी तक अवेलेबल हैं रिटन फॉर्म में. अगर पूरा फ्रीडम स्ट्रगल का देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट अभी भी अवेलेबल हैं रिटन फॉर्म में. बट एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, स्टोन एज की बात करें या हड़प्पन पीरियड की बात करें, यहाँ पे कोई सच रिटन डॉक्यूमेंट नहीं मिला. हड़प्पन एज में तो रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बट उनकी हम स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए. मीन्स कि या फिर ये तो गलती हमारी है कि हम उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाए. वो कुछ तो लिखते थे, बट अभी तक एज ऑफ नाउ, जब तक क्लास चल रही है, तो अभी तक पता नहीं है कि उसका क्या स्क्रिप्ट है. अब देखिए the sources of the ancient Indian history. So first sources is archaeological sources. This is the prime sources of the stone age के सिर्फ prime sources archaeological हैं. इवन हड़प्पा के भी जो sources हैं वो archaeological है. Literary source में उनकी script को अभी तक हम decipher नहीं कर पाए. Archaeological source में देखिए coins हैं, monuments हैं, artifacts हैं, inscriptions हैं, others. जो भी कुछ खुदाई में मिले हुए हैं, एक्सकवेशन में मिले हैं, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स. उसकी एज हम कार्बन डेटिंग के थ्रू निकालते हैं कि कितना पुराना ये ऑब्जेक्ट है जो मिला है. देन कम टू द लिटरेरी सोर्स. लिटरेरी सोर्सेज में बहुत सारे एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट हिस्ट्री में के भी लिटरेरी सोर्सेज है जब हम लिखना जान गए थे. अभी आप गुप्ता पीरियड में आएंगे, मौर्यन पीरियड में आएंगे, इसमें बहुत सारे आपको लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं. इस टाइम पे आते आते हम लोग लिखना जान गए थे, तो उधर से भी बहुत सारे सोर्सेज हम कलेक्ट करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में. सो लिटरेरी सोर्सेज, सम इज सेकुलर इन नेचर एंड सम इज रिलीजियस. ठीक है, लेट्स सपोज अगर वेदास की बात करें तो कुछ
इसमें तो कमेंट नहीं कर सकते, बट फिर भी सम आर सेकुलर इन नेचर एंड सम आर रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज भी हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। अभी हम बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, सो द सोर्सेज आर दी हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेचर सोर्स एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल्स मीन्स की जो आपको एक्सकवेशन में खुदाई में मिलते हैं वो चीजें, एंड डोमेस्टिक एंड फॉरेन की अगर बात करें सो मीन्स की लेट सपोज जो लिटरेचर कुछ डोमेस्टिक राइटर्स ने लिखा होगा या डोमेस्टिक स्कॉलर्स ने लिखा होगा उनकी बात करें। और एट द सेम टाइम एंशिएंट पीरियड में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी थे जो डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स की कोर्ट पे आए थे, लाइक गुप्ता पीरियड, मॉडर्न पीरियड में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए थे। उन्होंने भी काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशंस किया, काफ़ी सारी इधर के ऑब्जर्वेशन के बाद कई किताबें लिखी, उधर से भी हमको कुछ हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। नेक्स्ट कम, लिटरेरी सोर्सेस को भी हमने कैटेगराइज किया है, दैट इज टू ऑफ रिलीजियस लिटरेचर एंड द सेकुलर लिटरेचर। अभी बात किया था मैंने, जो प्योरली रिलीजियस लिटरेचर है और जो प्योरली सेकुलर लिटरेचर है, दैट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ, ये बात किसकी कर रहे हैं हम, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। सी, the religious literature can be divided into three parts. ठीक, three part religious literature can be divided into three part. the Vedas, ठीक, अभी बात किया, उपनिषद्स एंड अरंक्यास, वेदास का बात करेंगे हम जब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे उधर बात करें। देन बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर से भी एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत सारे सोर्सेस हमको मिलते हैं, दैट टू ऑफ त्रिपिटकास, जकतास। नेक्स्ट, जैन लिटरेचर्स में भी बहुत सारे सोर्सेस मिलते हैं। सो दीज आर दी रिलीजियस, क्या, रिलीजियस लिटरेचर फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द या सोर्सेज अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री, एंड दीज सम टू आर द सेकुलर लिटरेचर ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लाइक एपिक्स, plays, biography up to Patanjali, Arthashastra of the Kautilya, Harsacharitra. These two are the secular literature of the ancient Hindu history. This to Kautilya has written a book, Arthashastra in the Chandragupta. To be very precise, now we'll talk about the Hindu religious literatures जो अभी हमने बात किया. The first category of the history material in the India's oldest Vedic literatures are the Vedas, Brahmins, Upanishads, Shruts and Granths, Ramayanas and Mahabharata. These two are the Hindu religious literature from we get the information regarding the ancient Indian history. So this helps knowing how the social, religious and political life development of India. Sanskrit scholars have gathered a lot of historical material by researching the sub-part of the huge literature. Next to, well, this is description of the different dynasties from Vedic period to 3rd century. ठीक है, हम चलते चलते यहाँ तक आ गए. देखिए 3rd century की अगर इधर से बात कर रहे हैं हम, मीन्स कि हमने यहाँ से BC से स्टार्ट किया हिस्ट्री पढ़ना, इधर से स्टार्ट किया आपका 5 लाख BC से चलते चलते यहाँ पे इधर पे 0 है, ये AD 3rd century AD तक पहुँच जाते हैं, या कॉमन एरा जब पुराण्स या उपनिषद पुराण्स या उसके बारे में बात होती. दिस इज अ जीनोलॉजी वाज कंपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस प्रेवलेंट सिंस एंशिएंट टाइम. ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंशिएंट टाइम ये जीनोलॉजी कंपोज किया गया. नेक्स्ट, दिस इज बुद्धिस्ट लिटरेचर. ठीक है, जब बुद्धिज्म चैप्टर करेंगे सो इसमें हम और डिटेल में रिगार्डिंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कराएंगे. सी, द पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा इज फाउंड इन द एंशिएंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जकतास एंड द स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर. इसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर, देन जैनिज्म लिटरेचर से भी बहुत सारी एंशिएंट इंडियन सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है हमको. नेक्स्ट, दिस इज द जैन लिटरेचर. जैन लिटरेचर का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में. This is a literary source of the ancient Indian history. Then some is the secular literature, means that this is not related to any kind of religion. These are drama, plays, biographics, epics written by some ancient people. And some, this is very important, some foreign records also are there. Yeah, means that foreign traveler who came
इन एंशियंट पीरियड ड्यूरिंग द डिफरेंट एम्पायर रीजन लाइक गुप्ता एम्पायर में, मौर्यन एम्पायर में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स भी आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी, उसके थ्रू भी हम एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानते हैं. This is the archaeological source. This is important. Let's discuss regarding the archaeological source of ancient history. So, अगर हम Stone Age की बात करें, if we talk regarding the Stone Age, then Harappan period, ठीक है. इसका मैक्सिमम सोर्स इज द आर्कियोलॉजिकल, ठीक है. इसके बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर मॉडर्न पीरियड, महाजनपदास वहाँ आते हैं, तो बहुत सारे हमको लिटरेरी सोर्सेज भी मिलते हैं. बट इसका स्टोन एज का और दिसका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इसका मैक्सिमम सोर्स आपका क्या है? दैट इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्स. मीन्स कि वी गॉट द सम आर्टिफैक्ट्स, लेट्स सपोज कुछ एक्सकावेशन किया, कुछ चीज मिला, उसके बेसिस पे हमने इन्फर किया कि ये चीज ऐसा हो सकता है. So ancient inscriptions are the copper plate inscriptions are the most useful archaeological in the history. Means कि बहुत जगह खुदाई में कॉपर्स की प्लेट मिली, उसके थ्रू हमने इन्फर किया कि ऐसा कुछ था. Looking to the ruins of the ancient building, temples, stupas and caves, we get a lot of direct evidence and power of the old dynasty. ठीक है, बहुत स्तूपास, केव्स, टेम्पल आर्किटेक्चर के थ्रू भी हमको एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है. In addition to the monuments, inscription, copper plate inscription are the paramount our ancient Indian history. अभी जब हम साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, बेसिकली संगम एज की, तो बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर्स डिफाइन करते हैं साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में. चोला, चेरा, पांड्या एम्पायर्स के बारे में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. फ्रॉम द टाइम दे थ्रो द लाइट on the subjects such as kingdom condition, people's behavior and religion related thoughts and lineage and kingdomship of that period. Basically this is very important topic. मौर्यन एम्पायर में पढ़ेंगे. अशोकन इंस्क्रिप्शंस बहुत ज़्यादा, या अशोकन रॉक एडिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके थ्रू भी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है हमको. ठीक है. अशोकन रॉक एडिक्ट्स, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, सबके बारे में करेंगे डिटेल में. सिंह बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं. बेसिकली हमको गुप्ता पीरियड्स में बहुत सारे कॉइन्स मिलेंगे, जिसके बेसिस पे हम इन्फर कर सकते हैं कि इनकी सोसाइटी कैसा था, रिलीजन कैसा था, ट्रेड कैसा था, इनकी इकोनॉमी कैसी चलती थी. ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड बहुत सारे कॉइन्स देखने को मिला. गुप्ता पीरियड इज समटाइम रेफर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ द एंशियंट पीरियड, बट एज पर सम हिस्टोरियन ओनली. सम डोंट से दिस इज अ गोल्डन एज. So this is all about your history. So in the next class we will start from the हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन से डायरेक्टली विल स्टार्ट करेंगे. थैंक यू.